सॉरी वो बटन दब गया ना, वो कट हो गया। और भी दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं कैसा कंकु गा रहा है। दशा माता है ये, दशा माता। हमारे में तो 10वीं महाविद्या भी बोलते हैं। और 11वीं महाविद्या मेरी माँ मसाने मेरे लिए। और भी दिखाता हूँ। इतने सारे वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को वीडियो नहीं मिल रहे हैं माता जी के परछे के। उन्होंने कभी परछा नहीं देखा है, इसलिए किसी को आडंबर लग रहा है। देखिए फाइल बनाई है। अर्धी रातें ना दुना हो ना मारी माता तो कह जो। देखो और भी देखो, अरे बाप रे देखिए। दशा माता तो है ना वो छोड़ी दे पण मारी कामरूप देश ने मोहनी ना छोड़े, याद रखजो। देख रहे हो, देखो अरे ये सॉन्ग भी एक्चुअली गाने वाला भी कंकु के गायन गा रहा है। ये भी क्या आडंबर में घुस गया। माता जी के कंकु के गायन भी है, सॉन्ग भी है, तो ये लोग भी आडंबर होकर कर रहे हैं क्या? आडंबर कर रहे हैं। वाह। बोलने से पहले 100 बार सोचा करें कि क्या बोल रहे हैं भाई। देखो, समझो, परखो, उसके बाद में ही कुछ बोलो। पब्लिक को उल्लू मत बनाओ, पब्लिक को सब पता है। देखिए ये दूध पी रहे हैं माँ दशा माता की मूर्ति दूध पी रहे हैं वो। और हमारे बड़ौदा में भी है, होता है, ये हर साल होता है। देखिए कैसे पी रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे स्मार्ट लोग कि वहाँ पर काना किया होगा। अरे भाई कुछ ऐसे महाशय होते हैं ना, ज्ञानी पुरुष जो महाज्ञानी है। हंसी आती है ऐसे अज्ञानी इंसानों पे। और देखिए, ये देखिए भाई मेहरबानी करे वातो ओછી करજો બેજો ભાઈ સારે पे બેજો। ये जय दशमा गांव सेबलिया गांव है, सलेट कॉम वहाँ का है ये जो सवारी आ रही है ना माता जी की, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, याद रखिएगा। हालत ख़राब हो जाती है माता जी जब शरीर छोड़ते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की वाट लग जाती है। ठीक है, ये देखिए और भी देखो, हाथ से गिरा ना, देखो
लास्ट में एक वीडियो दिखाऊंगा आपकी। દશામાના વ્રત દરમિયાન દશામાના મંદિરોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જામી હતી। ત્યારે વડોદરામાં વાઘોડિયા વિસ્તારમાં આવેલું 25 વર્ષ જૂનું મા દશામાના મંદિરમાં મા દશામાં સાક્ષાત બિરાજમાન હોય તેમ જણાઈ રહ્યું છે। તો આ ચાલો આવું જોઈએ અમારા ખાસ અહેવાલમાં મંદિરમાં બિરાજમાન મા દશામાના પરચા। સમગ્ર જગ્યાએ દશામાના વ્રતની ઉમંગભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ત્યારે વડોદરાના વાઘોડિયા વિસ્તારમાં આવેલા 25 વર્ષ જૂના દશામાના મંદિર ભક્તોની આસ્થાનું કેન્દ્ર બન્યું છે। દશામાના આ મંત્ર જોડાયેલી છે। બ્રહ્માના હાથમાંથી કંકુ પડે છે। ભક્તોના જણાવ્યા અનુસાર વ્રત દરમિયાન માતાજી સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે। મેં આજે 15 થી 17 વર્ષથી હું અહીં આવું છું, પણ ખરેખર મારા ઘરમાં એટલી બધી ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી, પણ જ્યારથી મને લાગ્યું કે પતરાવાળું જૂનું મંદિર હતું ત્યારે મને કોઈ બતાવ્યું તો મેં આવી દર્શન કર્યા। તો એ દર્શન કરીને મેં ગઈ ત્યારથી મારું બહુ સારું જ કામ થયું છે। મારું મકાન પોતાનું નહોતું તો મારું મકાન થઈ ગયું, મારી છોકરીના લગ્ન થઈ ગયા। અત્યારે બી ખરેખર દશામાની મહેરબાનીથી મારું બહુ જ સારું છે ઘરમાં, અને બહુ શ્રદ્ધા છે મને આ મંદિરમાં, અને માતાજી હાજરો હાજર સાક્ષાત જ છે અહીંયા। તો માતા હોય તો બધું જ કામ થાય ને। જે બી ભક્તો સાચા મનથી સાચા ભાવથી જે દર્શન કરે છે એનો તો ખરેખર બેડો પાર કરી જ દે છે માં। અહીંયા કઈ જરૂર નહીં પૈસાની, ખાલી દર્શન તમે નમી જાઓ અને તમને તમને ના જોઈતું એ માતાજી ચોક્કસ આપે છે। મનની વાત જાણી જ 25 લે। થી 30 વર્ષ જૂનું છે અને પહેલાં પતરાનું હતું, અને બહુ જ ભક્તો દર્શન કરવા માટે આવે છે। દરેકના કામ થાય છે। માતા સાક્ષાત હાજરે હજુર છે। આરતી વખતે કંકુ પડે છે, અને દશામાના વ્રત વખતે 10 દિવસ માતાજીની આ સાંઢણીમાંથી જમણી આંખમાંથી ચોખ્ખું ઘી પડે છે, અને ઘીની એટલી બધી થાળીઓ ભરાય છે, અને એ જ દીવાથી આખું વરસ માતાજીનો અખંડ દીવો ચાલે છે। અને બીજું ઘી વધે તેનાથી 10મા દિવસે માતાજીનો પ્રસાદ વેચાય છે, અને બહુ જ ભક્તો આવે છે, અને દરેકના કામ થાય છે। ભજીયા મેણો ભાગે છે, લોકોના ઘર બને છે, અને લોકોને ભગવાન સરસ સદબુદ્ધિ આપે છે અને પૈસાદાર બનાવી દે છે। અને આ માતાજી પર મને અતૂટ શ્રદ્ધા છે। મારે ઘર નહોતું તો મેં માને કીધું કે માં મને તારા ચરણોની આગળ જ ઘર અપાવજે, હું તારા દર્શન કરીને જ ચા પીશ। તો માએ મારી પર એટલી કૃપા કરી તો મને એની બાજુમાં મને જ ઘર મળ્યું, અને મારા સપનામાં જે ઘર નહોતું એવું ઘર બન્યું। અને મેં માને એટલા મનથી શ્રદ્ધાથી ભક્તિ કરું છું, અને અત્યારે હું દર્શન કરવા આવું છું, અને રોજ સાંજ સવાર માના દર્શન કર્યા પછી જમું છું, માના દર્શન કર્યા પછી જ ચા પીઉં છું। આટલી મને મા પર શ્રદ્ધા છે। દરેક ભક્તો શ્રદ્ધા રાખી માની માનતા રાખે તો દરેક કામ થઈ જાય। શ્રદ્ધા છે દર્શન કરવા કાયમ માટે। દર શ્રાવણ મહિનામાં અમે આવીએ છીએ, અને બીજું કે કંકુ પણ એક ખાસું પડે છે માતાજીના હાથમાંથી, અને ઘી તો કાયમ માટે જોવા માટે સ્પેશિયલ માતાજીના દર્શન માટે શ્રદ્ધાથી જઈએ કાયમ માટે। લાડુબાથી ચાલીને અમે લોકો અહીંયા આવે, સોસાયટીવાળા અમે લોકો બધા। માતાજીની મંદિરની 30 વર્ષથી સ્થાપના થયેલી છે। નવા વર્ષમાં 2 વર્ષથી અમે નિજ મંદિરમાં પ્રવેશ કરેલો છે। માતાજીના આંતરરાષ્ટ્રીય સેવક તરીકે 5 વર્ષથી માતાજીની સેવા કરું છું। માતાજીના ઘીના પરચા 10 દિવસ જોવા મળે છે। કંકુના પરચા 12 માસ એટલે કે મંગળવાર અને રવિવાર સવાર 11:30 ને સાંજે 6:30 આરતી જેના ટાઈમે મળે છે। માતાજીના મંદિરે જે કોઈ વ્યક્તિઓ માનતા રાખે છે એ માનતા પૂરી થાય છે। આ દશામાના મંદિરે દરેક જેને આ બધા મૂર્ખો છે હે? આનો દિમાગ નથી, અને દરેક માતાજીના જે અને આંખો નથી કે શું? દરેકનું કામ સફળતાપૂર્વક થાય છે। મારા બાળપણમાંથી છે, પણ માતાજી આ લાગે છે પબ્લિક બી આડંબરના સપોર્ટમાં છે મારા ખ્યાલથી। આ બધું આડંબર છે। અત્યારે દુખિયારો માટે દૂર કરવા જ માંગ્યો છે। આ વર્ષની અંદર મારે 200 છોકરા છે આપેલા, જે ના કામ થતું હોય પણ કરી આવીએ આપણે, પણ સારા માટે એમ, ખોટા માટે નહીં। માતાજીને 30 વર્ષથી મંદિર છે, જૂનું પુરાણું। માતાજીની દશામાન લાવે છે, ત્યાંથી ઘી પડે છે, પરચો છે, કંકુનો પરચો છે। દર મંગળવારે ને રવિવારે ભક્તો આવે છે, ડાયરો થાય છે, અને માતાજી મંદિર પ્રગટ થયા છે માતાજી, અને કેટલા વર્ષોથી જૂનું પુરાણું છે। આવાના પબ્લિક આયા કરી દર્શનનો લાભ મળે છે બધાને। કૃણાલ શર્મા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ વડોદરા। આ બધી જ પબ્લિક ગલત, ખાલી એક વ્યક્તિ જ સાચો, જે આડંબર કહે છે ને ભાઈ એ જ સાચો એવું સમજે છે। दुनिया में एक्चुअली कोई જોયું જ નથી, किसी को पता ही नहीं है। माता जी के पर्चे को आडंबर बोल रहे हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं। देखिए और एक पर्चा પિચકામાં ઝૂલે છે મારી દશા, देखो। अरे वाह।
देखिए माता की मूर्ति के हाथ से कंकु निकल रहा है, देखिए। वाह वाह वाह, क्षमा हमारी माँ, क्षमा। जय जय हमारे माता दी। यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, आप खुद भी देख सकते हैं, यूट्यूब में उपलब्ध है ये सारे वीडियो। ओके, और भी दिखाऊंगा। देखिए सिर्फ लड़के लोग हैं, और अगर छोटी उम्र में अगर माँ दशा माता का प्रेम अगर लगनी लग गई आपको, तो फिर आप माता जी बन जाओगे। देखिए ये होते हैं ओरिजिनल भगत, ठीक है। जब पागल आप कह सकते हैं एक तरीके का, मैं खुद एक पागल जैसा भक्ति करता हूँ माता जी के प्रति, मेरी माँ मसाने मेडी के प्रति, कि जब इंसान सूझबूझ खोद के सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति पे भरोसा करता है, तभी चमत्कार होता है। स्वार्थ के तो भक्ति करो, साधना करो, तो कभी सफल नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। कितनी छोटे उम्र है इनकी। लगनी, माता जी की लगनी, क्योंकि इनकी पिछले जन्म में एक्चुअली ये उनके बहुत ही अटूट भगत होते हैं, इसकी वजह से वो छोटी उम्र में ही माता जी आ जाते हैं उनके पास। देखिए एक और माता जी का गंगू का बरसा, ये किन्नर है, और किन्नरों को तो माता जी को साक्षात एक्चुअली इनके पास होते हैं, माँ बहुचरा माता जी का हाथ होता है, और वो कोई भी देवस्थान का अगर वो साधना करके या उनकी भक्ति करके प्राप्त करना चाहे, तो माता उनको जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। देखिए आरती कैसे करते हुए, ऐसा आप नहीं कर सकते। देखिए मेरी माता पे सवाल उठाते हैं ये लोग। कामरूप देश के मसानी मेड़ी पे, वाह। पागल लोग, अच्छे भक्ति करिए, पहले भक्ति करिए, तभी माता जी एक्चुअली मिलेंगे। ऐसे माता नहीं प्राप्त होते, बहुत तप जप करना पड़ता है, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। देखो पैर के अंदर से हमको होता है, देखिए पैरों में से, देखा, देखिएगा उनके पैर दिखे, देखिए, अरे वाह, देखा पहले कुछ नहीं था। ये आडंबर है, इसको भी कुछ लोग आडंबर मानेंगे। वाह,
सच्चे भक्तों की आस्था पे आप लोग है ना उंगली उठा रहे हो अभी। देखिए, याद रखिए मौत तो एक दिन आनी ही है सबको, लेकिन मरने के बाद जो देवी देवता हिसाब लेते हैं ना वो बहुत खतरनाक वाला लेते हैं। जितना बोला है, जितना कहा है, सबका हिसाब होता है। पूरा का पूरा भूतकाल ऐसे पिक्चर जैसा चल रहा हो वैसा दिखाई देगा और हिसाब होगा सब। और ख़ास करके मसानी, मेरे मसानी तो बहुत हिसाब करते हैं बापा, वो तो बैठे ही वहीं पे हिसाब करने। 52 पेढ़ी नो हिसाब लेनारी मारी मोहनी हो એટલે યાદ રાખજો। એનો ચોપડો બહુ જૂનો છે અને બહુ પુરાણો છે। ठीक है, पहले कुछ नहीं था, लेकिन कैसे हुआ पैर से शंकु कैसे निकल रहा है, ये ओरिजिनल सवारी है। इनको कुछ भान नहीं है कि एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा था ना बहुत पहले आपको सवारी में, तो क्या बोलते हैं क्या करते हैं उनको कुछ भान नहीं है। और जब माता जी शरीर छोड़ेंगे ना तो एक्चुअली उनको भान आएगा। चलिए और दिखाता हूँ। तो कमर दुख गई मेरी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाऊंगा आप सबको। कितने छोटे हैं, देखिए कितनी छोटी उम्र में ही माता जी प्रसन्न कर ले हो जाते हैं। ये है, फिर और भी दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए पूरा का पूरा लिस्ट है अभी। देखो देखो ये लड़का है, देखो अभी तो हमको हाथ से आएगा। देखो पैरों के अंदर उनका कुंकू है। देख रहे हो इनके हाथ और पैरों से आ रहा है कुंकू। और भी है, देखो उनके मुख से कुंकू आ रहा है। देखिए देख रहे हो, आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और भी दिखाता हूँ। कुछ लोग आडंबर कहते हैं, वाह ये सब आडंबर है हैं? और यहाँ तो साक्षात एक्चुअली माता प्रकट हुए थे यहाँ पर।
એક સત્ય ઘટના લઈને આવ્યો છું। देखिए ये सूरत का है। શહેરમાં મોડલ ટાઉન કોરતપાટિયા વિસ્તારમાં ખોડિયાર નગર આવ્યું છે, જ્યાં ગિરીશભાઈ મંજીભાઈ મોહનભાઈના પુત્રવધુના કાંડે માતાજીનો પવન આવીને ધૂળીને કીધું કે હું મેરડીમાં આવું છું અને આ જગ્યા મારે છે, તો મને પૂજો, મને માનો। बराबर। અને આ વાતનું હું પ્રમાણ આપું છું કે તમારા ઘરની આંગણે જે ઝાડ છે તેના નીચે તમે ખોદો અને ત્યાં મારો હું પરચો આપું છું। જેમ માતાજીના કહેવા પ્રત્યે અમે સૌ 99 નાથ તેને ત્યાં ખોદ્યું અને અમને ખોદતા ત્યાંથી એક માતાજીની એક પથ્થર મળી આવ્યો, જ્યાં પથ્થરમાં એક દીવારૂપી માતાજીનું તેજ હતું। अरे वाह, અને એ देखिए તેજને અમે શ્રદ્ધા મુજબ માનીને માતાજીને કીધું કે માં તમે જે કીધું તે પ્રમાણે અમને તમારું પ્રમાણ મળી આવ્યું છે। ત્યારે ફરી માતાજીએ કીધું, જે એક શ્રદ્ધાનો વિષય છે, કે માતાજીએ ફરી ધૂણીને કીધું કે હું મેરડીમાં હજુ તમને એક બીજું પ્રમાણ આપું છું કે એની એ જગ્યાએ તમે ખોદો, ત્યાં મારું 2.5 ઈંટનું મંડાણ છે। અમે તે જગ્યાએ ખોદ્યું, આશરે 4 થી 5 ફૂટ ત્યાં ખોદ્યું, ત્યાં માતાજીનું 2.5 ઈંટનું મંડાણ મળી આવ્યું અમને, અને ત્યાં અમને માતાજીના દર્શન થયા। यहाँ साक्षात સૌ મારી 99 નાથ माता जी देखो, ये है ये दिया, जलता हुआ दिया अंदर से मिला। ये तो आप जानते होंगे, ये बहुत ही चला था वीडियो। તમારી મેરડીના પડછા છે, કાળી નાગની। મારી મેરડી છે ને જેવા તેઓને પસંદ નહીં કરતી, યાદ રાખજો। આડંબરવાળા જે લોકો જોડે જાય ના કોઈ દિવસ। देखो ये देखिए ये मंदिर है, यहाँ पर भी आता है कंकु। देखिए और भी दिखाता हूँ। अरे ढेर सारे वीडियो है वहाँ, देखिए हमारी माता ना तुम्हें गांडा थे जैसो। ये देखिए, ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको। देखिए जो चल रहे हैं वो कुछ नहीं है, लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो देखिए उनके पैरों से, देखिए कंकु ना पगला लाए है ना, घर में पधराम नहीं कराते हैं ना, तब देखिए। આવા જ વિડીયો જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ભક્તિ અમૃત ગુજરાતી। देखा, ये होता है ओरिजिनल माताओं का पर्चा। जिसके पास ओरिजिनल देवी होती है ना, उसी जगह पे होते हैं ये सब चीज़ें। गलत लोगों के पास नहीं होते हैं। देखिए ये सांडड़ी दूध पीता है। देखा, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो है, मैं आपको कभी और दिखाऊंगा। बस मैं इतना कहूँगा कि जो आडंबर जो एक्चुअली लोग फैला रहे हैं ना, आडंबर बोल के उनकी जो मनस्थिति है ना, मनस्थिति वो हिल चुकी है। उनको पता नहीं है कि वो एक्चुअली क्या बोल रहा है और वो क्यों कर रहा है, उनको खुद को नहीं पता। वो उनके जो कर्म है ना, वो करवा रहे हैं उनसे। तो समय रहते संभल जाइएगा और माता से माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि आपके ऊपर है ना इतने देवियों की नज़र है और इतने देवियों का क्रोप है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि माता माता बहन बहन होती है। ठीक है, याद रखिए। मैं मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि जो शक्ति एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो वो अपने बहन होते हैं वो। ठीक है,
तो अगर एक बहन के ऊपर उंगली उठती है और उनको अगर कोई भला बुरा कहता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो दूसरी बहन मदद के लिए तुरंत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो माता जी का बात है और ये श्रद्धा पे है। आप जैसी श्रद्धा रखोगे वैसा ही होगा आपके साथ, याद रखिएगा। इस घोर कलयुग में भी परछा देगी हमारी माँ। और ये तो सवा वेतनी काली नागनी है, याद रखिए। शमशान की रानी है, कामरूप देश को बकरा बनाने वाली है, याद रखिएगा। तो उनका वैन ऐसे ही नहीं छूटता। तो ये जो लोग आडंबर फैला रहे हैं ना, वैसा बोल रहे हैं ना कि आडंबर है, तो ये जितने वीडियो बनाए ना ये सब कुछ आडंबर ही लग रहा है मेरे ख्याल से। तो सभी के घर पे जाना चाहिए, आपकी टीमों लेके, जो भी टीम है आपकी, ठीक है। और वहाँ पर ये जो शब्द है ना वो यूज़ करिएगा, फिर पता चलेगा आपको, ठीक है, कि लोगों की विश्वास को ठेस पहुँचाने से क्या होता है। बराबर। मैं बहुत दिनों से शांत था और मैं अब भी शांत ही हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदिरा और घमंड इनको त्याग दिया है और ना ही मैं उनको मानता हूँ और उनमें समर्थ हूँ। हाँ, जब एक्चुअली धर्म का नाश हो रहा हो और अधर्म धर्म के ऊपर भारी पड़ रहा हो, तब एक्चुअली अधर्म का विनाश करने के लिए खुद भगवान भी अवतार लेते हैं। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ एक मानव है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। इसलिए आप लोग एक्चुअली भ्रमित ना हो। आपको कुछ लोग भ्रमित करने जा रहे हैं, बराबर। तो माता के ऊपर जो विश्वास है आपका, उनको डगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विश्वास बरकरार रखिएगा माता पे, अपनी माता पे, जो भी आप मानते हो, और निस्वार्थ भाव से भक्ति करिए, उनके ऊपर विश्वास रखिए। फिर देखिए आपकी देवी ही कंकु के परछे देगी। आप खुद सोचोगे कि एक्चुअली ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये क्या है कि गुरु के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुरु ही आपको ज्ञान देते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, कौन सी विचारधारा आपको अपनानी चाहिए, कौन सी विचारधारा नहीं अपनानी चाहिए। ये सब कुछ एक्चुअली एक गुरु ही अपने शिष्य को सिखाता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर गुरु की बात मानोगे आप, तब ही आप कुछ कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे और भक्ति के लाइन में आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो इस ज़िंदगी के अंदर जो आपकी जो लाइफ है उसके दरमियान इतनी सारी बातें आप सीखोगे, घटनाएं होगी आपके लाइफ में और उतार चढ़ाव होंगे कि आप भक्ति लाइन में आएंगे ही नहीं, ठीक है। आप उलझ जाओगे, और आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो आप ज़रूर उलझ जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले गुरु करिए, गुरु करेंगे ना, और उसके बाद में ही आप एक अच्छे भगत बन पाएंगे, अच्छे साधक बन पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग ये चीज़ें फैला रहे हैं, कृपा करके अभी भी आपके पास मौका है, बस आप अपना काम करिए जो भी है, लेकिन किसी की माता के ऊपर उंगली मत उठाइए। जो माता कंकु के परछे देती है उनका क्या कहूँ कि सोशल मीडिया पे उनका मजाक मत बनाइए, ठीक है, उतना ही कहूँगा। क्योंकि उसके बाद में जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो दो शब्द आपके पीछे लगे हुए हैं ना, उनकी थोड़ी इज्जत करिए, क्योंकि आप छोटे मोटे संप्रदाय से जुड़े नहीं हो, वो बहुत बड़ा संप्रदाय है। और श्री गुरु गोरखनाथ जी, गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, ये बहुत बड़े थे, ये बहुत बड़े साधक हो चुके हैं। तो उनकी थोड़ी इज्जत करिए, जो बड़े बड़े गुरु हो चुके हैं उनकी इज्जत करिए, ठीक है। और आई होप कि आप समझेंगे ये सारी चीज़ों को, और ये छोटी छोटी बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ देंगे, बराबर। और दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना छोड़ देंगे ये वीडियो देखने के बाद में,
बराबर है। बाकी आपकी जो मर्ज़ी है वो आप कर सकते हैं। जो कोई भी टीम भेजना हो या कुछ भी करना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो रेडी बैठा हूँ यहाँ पर, और उनके साथ कैसे मुझे कोऑर्डिनेट करना है, क्या करना है, मुझे सब पता है। मेरे वकील से भी मैं बातचीत कर लिया है, ठीक है। उन्होंने भली बात ही कह दिया है कि आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लीगली एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगेगा कि अगर कोई 10 करोड़ रुपीज़ मुझे एकदम से डोनेट कर दे मेरे एनजीओ में, तो फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जल्द से जल्द माता जी का मंदिर बन जाएगा, एक आश्रम बन जाएगा, तो और लोगों को भी मैं साधना करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि सब लोगों को अच्छा लगा होगा माता जी के पर्चे देख के, और आप लोग भी समझ चुके होंगे कि इस घोर कलयुग में मेरी एक अकेली ही देवी नहीं है जो कंकु के पर्चे देती है, और भी देवी देवता है जो अपने होने का एहसास करवाते हैं और अनबिलीवेबल चीज़ें वो दिखाते हैं, ठीक है, और वो अपने होने का एहसास करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये जो इंसान है ना वो बहुत बड़ा अज्ञानी है। जब तक एक्चुअली चमत्कार देखता नहीं तब तक नमस्कार नहीं करता। इसलिए माता जी को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है ताकि भरोसा आए, भक्त पे भरोसा आए, भक्त को भरोसा आए ना, इसकी वजह से। और एक तरीके का मतलब आप स्वागत भी समझ सकते हो, और खुशी से माता जी ये कंकु निछावर करते हैं अपने भगत के ऊपर, और माता पर्चा देती है, ठीक है। तो आप भी, आपके घर में भी कंकु के पर्चे होंगे, अनबिलीवेबल चमत्कार होंगे, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग से, मन से अघोर बनना पड़ेगा, एकदम निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी पड़ेगी, साफ़ सुथरा रहना पड़ेगा, नीति नियम का पालन करना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदिरा से दूर रहना पड़ेगा, अहंकार, अभिमान, इनसे दूर होना पड़ेगा। छोटे बच्चे बन के आपको रहना पड़ेगा और भक्ति करनी पड़ेगी। अगर छोटे बच्चे बन के आप सिर्फ गणपति जी की भी भक्ति करेंगे ना, तो गणपति जी भी आपको बहुत कुछ देंगे, अनबिलीवेबल चीज़ें देंगे, ठीक है। आप जो मांगोगे ना वो देंगे, ठीक है। चाहे वो अम्बा माता हो, गणपति जी हो, सिकुतर माता हो, सदी माता हो, मसाने मैडी हो, उक्तापुर की मैडी हो, ठीक है। कोई भी देवी देवता रहने दो, कोई भी, जैसे देवी देवता होंगे वैसे पर्चे देंगे वो, ठीक है। अगर आप भैरव जी की साधना करेंगे तो ऐसी शमशान की ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देगी, ऐसी ऐसी अनबिलीवेबल चीज़ें दिखाई देगी, अनबिलीवेबल चीज़ें आपको प्राप्त होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। शमशान की अगर आप साधना करते हो, उनको प्राप्त करते हो, शक्ति को प्राप्त करते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। लोगों का भला भी कर सकते हो, लोगों का तंत्र काट कर सकते हो। बड़े से बड़ा जो भावनाओं में आके लोग एक दूसरे के ऊपर तंत्र क्रिया कर देते हैं, किसी का अहित करने के लिए षटकर्म कर देते हैं, तो उनका काट भी कर सकते हो, इससे पुण्य कमा सकते हो, ठीक है। और एक इंसान को, एक साधक को तो पुण्य ही कमाना चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए, याद रखिए। क्योंकि पैसे तो भौतिक चीज़ों की पूर्ति के लिए है, सिर्फ खाना खाने के लिए है, और जो अपनी भौतिक चीज़ें मतलब समझ रहे हो, जो रोज़ाना खाना खाना, अपने कपड़े पहनना और एक छत होनी चाहिए आपके पास, बस यही भौतिक चीज़ें मैं मानता हूँ। एक इंसान को अगर जीना है तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। छत होनी चाहिए, फिर रोज़ का खाना उनको मिलना चाहिए 2 टाइम का, और पहनने के लिए वस्त्र होने चाहिए, बस यही चीज़ें। वो बहुत अच्छे से वो जीवन गुजार सकता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो चीज़ें होती है ना कि इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो सब इच्छाएं होती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें नहीं, एक्चुअली मेरे अंडर में तो मैं नहीं उसको प्राप्त करा था, क्योंकि आपको मन से अघोरी बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो उनसे ऊपर उठना है आपको, उसके बाद में ही शक्ति खुश होके वो आती है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे ये सारी बातों को, सारी चीज़ों को, और बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखेंगे। और जो भाई साहब है जो बहुत ही एक्चुअली, उनको बहुत बार मैंने समझाया है लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, तो उनकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण करें, और जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से मैंने उनको पहले भी शांति से मैंने बात किया, आज भी शांति से ही बात करूँगा कि दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए, ठीक है। बस इतना ही मैं कहूँगा।
चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रखते। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां मसाने मेडी। सभी को प्रणाम, सभी को जय माता जी। माता आप सभी के दुखों का हरण करें और जल्दी ही आपके जो भी कर्म चक्र है उनकी जल्दी ही आपके कर्म चक्र अच्छे हो, ठीक है। और अच्छे आपके जो भी अपने अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको जल्दी मिले। चलिए जय माता जी बताना, जय मां मसाने मेडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जय माता जी।